Hey guys, how are you all? Welcome back. Welcome to Vedantu's J channel. कैसे हैं सब लोग? तो guys, I'm back again और आज हम लोग रैप अप करने जा रहे हैं SHM और वेव्स की जो यूनिट है उसे। और फाइनल टॉपिक ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड आई वुड से जेई का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स भी बोलते हैं इसे, इस डॉपलर्स इफेक्ट। आप लोगों ने डेफिनेटली इसके बारे में सुना भी होगा, तो आज इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। एंड डेफिनेटली आई एम श्योर, आई एम थ्रिल्ड टू शेयर दिस सेशन विद ऑल ऑफ यू। Yes, it's an 11th standard topic, waves, sound waves specifically, जो हमने स्टडी किया है। It's going to be a part of that. Okay, so it is not actually a part of principle of superposition, जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी इंटरफेरेंस बीट्स और स्टेशनरी वेव्स को स्टडी किया। So Doppler's effect is an independent topic from that, and we'll explore that topic today. Okay, so guys, I hope all of you are ready. So stay tuned. I'm going to tell you how to approach the Doppler's effect problems which are related to JEE examination. Okay, good. So people, let me start off with my introduction. This is me, your Suri sir. I am a BTech from IIT Bombay और इस चैनल पे मेरे स्टूडेंट्स मुझे मुगैम्बो बुलाते हैं, बिकॉज व्हेन यू विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन ऑफ जेई, मुगैम्बो खुश होगा। ओके, तो गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली फील फ्री टू सब्सक्राइब। अगर लगता है कि चैनल पे होने वाली एक्टिविटीज़, चैनल पे हम जो अकेडमिक और मोटिवेशनल सेशंस करते हैं, इंफॉर्मेटिव सेशंस करते हैं, इफ़ यू थिंक दे कैन बी हेल्पफुल टू यू, तो you can take the advantage of that. Okay, by the way, in general, whenever I'm going to go online on YouTube to see whether I should be spending my time with a channel or not, तो obviously बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप जज करते हो, राइट? सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ व्यूज, ये सारी चीज़ों के बेसिस पे आई एम श्योर आप लोग जज करते हो। बट देन लेट्स टॉक अबाउट द मेन ऑब्जेक्टिव विद विच यू गाइज आर कमिंग टू एन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सच एज वेदांतु। तो वेदांतु का रिपोर्ट कार्ड डेफिनेटली आप लोग जानना चाहोगे कि हाउ एग्जैक्टली और हाउ गुड वेदांतु इज व्हेन इट कम्स टू JEE as an examination. So let me take this opportunity to tell you people how has been the results of Vedantu this year. So Vedantu students have, like previous year, like previous year. This year also we have selections, a lot of selections in IIT JEE, not just main. I'm talking about advanced examination. So without taking any further time, let me show you the results, guys. These are results of JEE advanced. Okay, माइंड यू, मैं जेई मेन के रिजल्ट नहीं शो कर रहा हूँ, वो शो करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्लाइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई एम गिविंग यू द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो, एंड दैट इज, like last year we have got all India rank under 100, which is a dream for every institute, any institute, and obviously for a student more, right? So इस साल ध्रुव from Mumbai, he has cracked JEE Advance with the rank of All India rank 43, right? But I'm sure you will agree, you will resonate with me कि IIT JEE एडवांस एग्जामिनेशन में अंडर 500, अंडर 1000 रैंक लेके आना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी रैंक मानी जाती है। तो नॉट जस्ट ध्रुव, वी हैव माधव फ्रॉम चंडीगढ़ विद 208 रैंक, 227 rank for Tanmay from Delhi, 290 rank by Akshat from Ranchi, and 482 rank from Pandya from Thasra. This is top 500 I'm talking about, but let's have a look at top 1000 ranks also. So 582, 635, 663, 776, and 778. These are all the people who are going to go to IITs, right, people? They're already on their ways. Counselings are done. Admission process is taken care of. So all the best to all of these guys for their bright futures. अगले 4 साल amazing years of IIT होने वाले हैं. That I can say from my first-hand experience, right? And overall, top 500 में we have 5 selections. Top 1000 में 11 students from Vedantu made it to JEE Advance, and 44 students in top 2000, 121 in top 5000, and overall 253 students in top 10,000 ranks, the ranks which actually matter the most, right people? So जैसा कि मैंने बोला कि when you come to the platform on YouTube, it is not only about subscribers and number of views, it is also about looking at the report card of the institute. You can go and check out the report cards of other institutes as well, the online institutes maybe. Vedantu जैसे results आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, right guys? So rest assured,
you are in the safe hands when you're coming and attending lectures, not only just on YouTube, we have our platform also. आप वहां जाके भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे सेशंस में आ सकते हो, हमारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, राइट? तो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डॉपलर्स इफेक्ट? सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। अगर एक सिचुएशन मैं आपको देता हूं, उसको जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करो। इन दिस केस द सिचुएशन विच इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, स्क्रीन पे जो सिचुएशन आप देख रहे हो, पहले मैं वही विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। मान लो वो ऑब्जर्वर आप हो और एक एम्बुलेंस है जो आपसे कुछ से 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे पीछे खड़ी हुई है और वो किसी पेशेंट को लेने के लिए आई है और कंटिन्यूसली एम्बुलेंस की साउंड जो है, उसका जो सायरन है, उसकी आवाज आप तक पहुंच रही है, राइट? गॉड फॉरबिड कि एम्बुलेंस आपके आसपास कहीं भी आए, किसी के भी घर में आए, जरूरत ही ना पड़े। We are all going through a very difficult phase at this point of time. So yes, I'm sure this is one relatable example. आजकल हम सब एम्बुलेंस की आवाज बहुत रेगुलरली, बहुत फ्रीक्वेंटली हमें सुनाई देती है। तो गाइस, कमिंग बैक टू फिजिक्स, इफ यू आर दैट ऑब्जर्वर और आपके पीछे एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है, स्टेशनरी है, मूव नहीं कर रही है, तो उससे आने वाली जो साउंड है, जो हमें उसकी श्रिलनेस सुनाई देती है, माइंड यू, हाँ मैं उसकी श्रिलनेस की बात कर रहा हूँ, उसकी श्रिलनेस, उसका तीखापन जो है आवाज का, वो कंटिन्यूसली वही रहता है, राइट? इट डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज। तो श्रिलनेस है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है और कम होती है, राइट? ये मत सोचना कि वो जो इंटेंसिटी बढ़ना कम होना है वो फ्रीक्वेंसी है। दैट इज बेसिकली नॉट द श्रिलनेस, दैट इज नॉट द फ्रीक्वेंसी। आई एम टॉकिंग अबाउट द frequency, and that remains the same. The shrillness of the sound remains the same. It remains the same annoying sound that you are listening to, right? But if that ambulance starts to travel, जैसे ही उसने पेशेंट को पिक किया, if that ambulance starts to go, तो जब एम्बुलेंस आपके पास आती है तो श्रिलनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इरिटेशन ऑफ द साउंड इंक्रीजेस, एंड एज द एम्बुलेंस पासेस बाय, तो जैसे जैसे एम्बुलेंस दूर जाती है, आपको जो उसकी श्रिलनेस होती है साउंड की, जो सुनाई देती है, वो कम होती चली जाती है, राइट? और रिलेटेबल एग्जांपल अगर मैं बताऊं गाइस, तो इमेजिन योरसेल्फ टू बी स्टैंडिंग ऑन द रेलवे प्लेटफॉर्म। आप रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और एक ट्रेन अप्रोच हो रही है जिसमें जो इंजन है, इट इज मेकिंग अ साउंड, इट इज विस्लिंग, ठीक है, सीटी बजाते हुए एक इंजन आ रहा है, एंड व्हेन द इंजन इज अप्रोचिंग, yes, I'm sure you guys are able to relate to this also, जब इंजन अप्रोच करता है तो श्रिलनेस ऑफ द साउंड इंक्रीज होती जाती है। ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी बढ़ती है, लेकिन उसकी जो श्रिलनेस है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती चली जाती है, एंड एज द इंजन क्रॉसेस, यू नो दैट कि वो साउंड मोर बेरेबल, लेस इरिटेटिंग होती चली जाती है। तो गाइज, ये जो फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है, साउंड की फ्रीक्वेंसी में जो वेरिएशन आता है, ओनली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव मोशन between the source and the observer is what we call as the Doppler's effect। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मूला बताने वाला हूं, उस फॉर्मूले को बस ध्यान में रखना है और कॉमन सेंस के साथ उसे अप्लाई करेंगे, एंड यू विल सी दैट द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी सॉल्व्ड लाइक दिस। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट स्टडी करने के लिए हमें तीन चीजों की जानकारी की जरूरत पड़ेगी। एक, स्पीड ऑफ साउंड, v is going to be speed or velocity of the sound, velocity of your source and velocity of your observer, राइट? वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑब्वियसली नॉन जीरो रहेगी, वो क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो हम 330 मीटर्स पर सेकंड उसे अज्यूम कर लेंगे, और अगर हमें सोर्स और ऑब्जर्वर की स्पीड दी हुई होगी, मतलब वो मूव कर रहे होंगे, तो हम अकॉर्डिंगली उन्हें यूटिलाइज करेंगे, ठीक है? तो चलो, आई विल टेल यू व्हाट आर द कॉमन केसेस व्हिच वी आर गोइंग टू विटनेस हियर। ओके गाइस, सो व्हेन द ऑब्जर्वर एंड द सोर्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, तो क्या होगा? तो अगर ये आपका साउंड सोर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एफ नॉट है, तो ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देने वाली है वो भी एफ नॉट रहेगी, बिकॉज दे बोथ आर एट रेस्ट। कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। दैट मीन्स जो भी साउंड की श्रिलनेस यहाँ से प्रोड्यूस होने वाली है, वही साउंड की श्रिलनेस ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व भी होने वाली है। आई नो दैट यू ऑल नो दिस ऑलरेडी, दैट इज व्हाई वी आर जस्ट ब्रशिंग थ्रू इट क्विकली सो दैट वी कैन जंप to the formulae, their understanding and the problem solving part, right? Now, the second common case is when your source is moving but the observer is at rest। अब अगर आपका सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो मैंने दो ऑब्जर्वर्स यहाँ पे स्टेशनरी रखे हुए हैं। अगर हम मान लो पहले इस ऑब्जर्वर की बात करते हैं, लेट्स कॉल दिस x1 एज y एज 1। सो x जो है वो हमारा ऑब्जर्वर नंबर 1 है और सोर्स उसके पास जा रहा है। अगर इसे इंजन समझ लें और ऑब्जर्वर आप हो, तो इंजन जब आपके पास में आएगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट यू विल रिसीव
has to be more than the frequency which is actually reduced by the source, right? तो engine जब आपके पास आता है तो engine की sound वही है, उसकी श्रिलनेस चेंज नहीं हो रही है एक्चुअली, लेकिन आपको जो सुनाई देगी अपेरेंटली वो चेंज होने वाली है। तो अगर हम एफ एक्स लिखते हैं गाइस, यस, सो दैट इज एफ नॉट, और हमें क्योंकि ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है तो न्यूमरेटर विल बी वी एंड डिनोमिनेटर विल बी हैज टू बी लेस देन द न्यूमरेटर, सो दैट ओवरऑल एफ नॉट से मैं कुछ ऐसा फैक्टर मल्टीप्लाई कर सकूं जिससे मोर देन वन वैल्यू बोल सकते हैं। तो हमें मालूम है कि यहाँ पे एफ एक्स पे जो सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी है दैट एफ एक्स वैल्यू इज ग्रेटर देन एफ नॉट। तो एफ नॉट को किसी वैल्यू मोर देन वन से मल्टीप्लाई होना चाहिए, एंड फॉर दैट डिनोमिनेटर विल बी वी माइनस वी एस। What is Vs? Vs is the velocity of the source. V is the velocity of the sound. Right, guys? I hope all of you are getting this. Okay. I know. Don't worry. We are going to get into the all the cases और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे। पर अब इन्हें देखो, ये जो ऑब्जर्वर है इससे तुम्हारा सोर्स दूर जा रहा है, सो वी कैन से दैट एफ वाई का वैल्यू शुड बी लेस देन एफ नॉट। मतलब एफ नॉट को मुझे किसी लेस देन वन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट विल बी वी अपॉन v plus vs। तो यू कैन सी दैट कि ये जो ब्रैकेट वाला फैक्टर है वो लेस देन वन आएगा, एंड दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी एट द सोर्स y। ओके पीपल, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ जनरल फॉर्मूला टुवर्ड्स द एंड और हम उसे समझ लेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। अब दूसरा रादर तीसरा केस है जब हमारा ऑब्जर्वर मूव करेगा, सोर्स स्टेशनरी रहेगा, सोर्स ने एफ नॉट फ्रीक्वेंसी की साउंड को प्रोड्यूस किया, x is our source number 1, the observer number 1, and y is our observer number 2। तो अगर ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है तो यहाँ जो फ्रीक्वेंसी एफ एक्स मिलेगी दैट हैज टू बी ग्रेटर देन एफ नॉट, बट दिस टाइम योर सोर्स इज नॉट मूविंग, दैट मीन्स एफ एक्स इज गोइंग टू बी एफ नॉट v प्लस वी ओ बाई v। तो अब न्यूमरेटर को बड़ा करना है, डिनोमिनेटर में सोर्स तो मूव कर नहीं रहा है, राइट गाइस? तो ऐसे में फ्रीक्वेंसी हैज टू बी more than f naught only when this bracket is more than 1, and that is definitely going to be more than 1. In case of y, we know that fy will be less than f naught, that means fy will be equal to f naught v minus vo divided by v, और vo है ऑब्जर्वर की वेलोसिटी से अगर हम चेक करें यहाँ पे तो ब्रैकेट का वैल्यू डेफिनेटली लेस देन 1 आने वाला है। ओके, एंड नाउ द मोस्ट जेनेरिक केसेस दैट वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट, दीज आर द टू जेनेरिक केसेस जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये वो केसेस है जहां पे ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों मूव भी करेंगे और दोनों एक दूसरे के पास भी आएंगे। सो व्हेन दे आर रिलेटिवली कमिंग क्लोज, यू नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड heard by the observer, let's call that f dash, has to be more than f naught. We are definitely sure about f dash being more than f naught. तो f dash जो साउंड की फ्रीक्वेंसी सुनाई देने वाली है दोस्तों, उसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फैक्टर कुछ ऐसे अरेंज हो जाएंगे, v प्लस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस। यू कैन सी द ब्रैकेट, ये जो छोटा ब्रैकेट है दोस्तों, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो रेशो हम लेने वाले हैं वो रेशो डेफिनेटली मोर देन 1 आएगा, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन when you have your source and your observer both are moving. You can see it in this way also, that sound is moving in this direction with velocity v, vo is on the left hand side, तो relative velocity add हो रही है, you can see that in the numerator, और vs is along the same direction, तो जब दोनों velocity same direction में होती हैं तो relative velocity subtract हो जाती है, ऐसा भी सोच सकते हो, ठीक है? और just opposite up होगा when they are both going away, तो यहाँ पे f dash जो frequency होगी वो f naught के comparison में कम होने वाली है, and for that f dash will be equal to f naught v minus vo divided by v plus yes, right guys, right? तो जिस डायरेक्शन में साउंड जा रही है उसी डायरेक्शन में हमारा सोर्स भी जा रहा है, right? Sorry, sound has to go in the opposite direction, that's one correction. Over here there will be a correction in the direction of sound velocity. Sound has to always travel towards the observer, right guys? तो अब देखो vs is opposite to v, so that's why in denominator they are added, and vo is in the direction of v, so that is why they are subtracted, right people? तो in general क्या याद रखना है, फंडामेंटली क्या याद रखना है, f dash will be equal to f naught v
प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी प्लस माइनस वी एस। और बस इस चीज का ध्यान रखना कि सोर्स मूव कर रहा है या ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, अकॉर्डिंगली वी एस और वी ओ को जीरो या नॉन जीरो पुटअप करेंगे। अगर दोनों रिलेटिवली पास आ रहे हैं तो इस रेशो का वैल्यू मोर देन वन लाना है, तो ब्रैकेट में रेशो है। और अगर सोर्स और ऑब्जर्वर रिलेटिवली दूर जा रहे हैं तो डेफिनेटली उन दोनों का रेशियो जो आने वाला है v प्लस माइनस वी ओ और v प्लस माइनस वी एस का, इसे लेस देन वन लेके आना है। ठीक है गाइस, गुड। चलो लेट्स गो टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग। Question number 1 says that Doppler's shift in frequency does not depend upon. Let's see the options. Frequency of the wave produced definitely depend करता है Doppler shift जो है phenomena. Velocity of the source पे depend करता है, velocity of the observer पे भी depend करता है। हाँ, distance from the source to the listener. Observer और source के बीच के distance पे depend नहीं करती है frequency. Right guys? It is rather dependent upon the relative velocity of both of them. Okay? Correct answer to the question is option D. Okay. Now, coming to some numericals, a source of sound of frequency 450 hertz, you can say, is moving towards a stationary observer. ठीक है दोस्तों, तो observer stationary है and your source is moving with 32 meters per second. साउंड की वेलोसिटी 340 मीटर्स पर सेकेंड दी हुई है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी पता लगानी है, तो f विल बी इक्वल टू f नॉट v upon v minus vs. Why minus? Because it is moving, the source is moving towards the observer, तो frequency more than 450 सुनाई देने वाली है, so definitely आंसर A नहीं हो सकता, आंसर D भी नहीं हो सकता, तो आंसर B और C में से एक होने वाला है। तो f naught is 450, velocity of sound is 340 and this is 340 minus 34। तो अगर यहाँ से हम 34 कॉमन ले लेते हैं, on numerator and denominator side I have 10 by 9, these two cancel, this will cancel it, 9 5s are 45, so final answer comes out to be 500 hertz or cycles per second. This is the apparent frequency when your source is trying to approach the observer with a velocity of 34 meter per second. Okay, good. Next one, we have been given the wavelength as 120 centimeter when the source is stationary. Okay, and if the source is moving with relative velocity of 60 meter per second towards the observer, then the wavelength of the sound which will be reaching to the observer will be. तो basically अगर मैं पहले ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालूं तो वो हो जाएगी v बाय लैम्डा नॉट, जो कि हमें 120 सेंटीमीटर दी हुई है। और अब अगर n निकालें, या अगर n हमारे लिए थोड़ा नया सिंबल है, तो ये लैम्डा नॉट है, f नॉट हो जाएगा v बाय लैम्डा नॉट, और f अगर निकालें तो वो f नॉट relative velocity 60 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स पास आ रहा है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए। राइट गाइस, तो f को हम लिख सकते हैं v बाय लैम्डा और f नॉट को लिख सकते हैं v बाय लैम्डा नॉट। v, why it is not changing? Velocity of sound, you know that whenever a wave travel in a medium, velocity of the wave does not depend upon the source or the observer, it only depends upon the medium. तो अगर medium change नहीं होगा तो velocity of the wave will not change. Okay, so this is v which is given to us as 330, उसे 330 पुट करते हैं, बचा हुआ पार्ट हम देखेंगे कि कैंसिल होने वाला है, तो this will be 330, this 330 minus 60. Okay, तो ये कैंसिल हो जाता है and I have 1 upon lambda equal to 1 upon 120, उसे हम लोग सेंटीमीटर्स में ही रख रहे हैं, और ये आएगा 330 by 270, जीरोस कैंसल्ड, लैम्डा का वैल्यू आ जाता है 120 into 27 डिवाइडेड बाय 33, तो ये रेशो डेफिनेटली लेस देन 1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय 120। तो आंसर में एक ही ऑप्शन है जो कि लेस देन 120 है, एंड दैट इज 98 सेंटीमीटर। यू कैन चेक आउट ऑल्सो, ट्राई भी कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। गुड पीपल, moving on to the next one, a source of sound emits wave with frequency f hertz with a speed v meter per second. Okay, and two observers move away from this source in opposite direction. तो अगर हमारे पास एक साउंड सोर्स है और वो मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी v एंड हैज अ फ्रीक्वेंसी f, और हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स हैं जो कि दोनों सेम स्पीड के साथ 0.2v
के साथ में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, such that their relative velocity is same with respect to the observer. So the question is asking the frequency ratio heard by the two observer. Can I say that यहाँ पे जो frequency हमें सुनाई देने वाली है दोनों ही observers के लिए वो same होने वाली है. F dash will be equal to F double dash because of the same relative velocity. That's why the answer will come out to be 1:1. Okay. Next one. An observer moves towards a stationary source of sound with a frequency n. The apparent frequency heard by him is 2n. तो अब हमारा observer move कर रहा है and that too towards the source move कर रहा है. ठीक है. तो f which is equal to f naught v plus vo by v करना पड़ेगा कि overall frequency increase हो रही है. Apparent frequency 2n, original frequency n, and 332 plus vo divided by 332. फैक्ट एक काम करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड एकदम एंड में पुट करता हूँ, शायद उसके बिना भी हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होने वाला है. ठीक है गाइस, तो ये कैंसिल कर दिया. यस, 2v विल बी इक्वल टू v प्लस vo. दिस कम्स हियर, vo कम्स आउट टू बी 2v माइनस v, दैट इज v, एंड दैट इज 332 मीटर्स पर सेकेंड. मतलब हमारा ऑब्जर्वर स्पीड ऑफ साउंड के साथ में मूव कर रहा है. उसका जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का ऑब्जर्वेशन होगा वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से डबल होने वाला है. Now this one, a source and a listener are both moving towards each other. तो हमारा observer और हमारा sound source, they both are moving towards each other with the same speed, that is v by 10. Okay? And the frequency emitted is f. What will be the frequency heard? तो अब दोनों move कर रहे हैं, तो f will be equal to f naught. Okay? In fact यहाँ पे f को ही use किया है, तो f dash बोल देते हैं apparent frequency. So apparent frequency is f times v plus vo divided by v minus vs, क्योंकि दोनों they are moving towards each other. Okay, so f v plus v by 10 v minus v by 10 से डिवाइड किया तो ये हमें मिलने वाला है 11v by 9v. दोनों को कैंसिल करते हैं, so 11 by 9. Okay, 11 by 9v, that will be close to 1.22 f. That's the apparent frequency. Okay guys, great. Next one, a source and an observer move away from each other with a velocity of 10 meters per second. This time they are going away from each other, and okay, they both are moving with a velocity that is 10 meters per second with respect to ground. So if the observer finds the frequency to be this, then the actual frequency is going to be how much? So f dash or f will be equal to f naught v माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस वी एस बार, बिकॉज ये जो रेशो है वो लेस देन 1 आना चाहिए, है ना. तो f का वैल्यू है 1950. f नॉट पता लगाने बोला है क्वेश्चन में. दिस इज 340 माइनस 10 अपॉन 340 प्लस 10, दैट मीन्स 330 बाई 350. सो f नॉट आ जाएगा 1950 इंटू 350 डिवाइडेड बाई 330. कैंसिल करते हैं, ये दोनों को जब डिवाइड करोगे तो क्लोज टू 1.06 ये फैक्टर आता है, और 1950 से जस्ट इमीडिएटली बड़ा वैल्यू अगर देखोगे तो 2068 हर्ट्ज इज द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट. ओके गाइस, आंसर आ जाता है ऑप्शन बी. ओके, नाउ दिस वन, we have two passenger trains which are moving with a speed of 108 km per hour. 108 को अगर 5 by 18 से मल्टीप्लाई करें, this cancels it 6 times, that means 30 meters per second is the velocity of the trains, individual trains. Okay, and they are crossing each other. So one of them blows a sound of frequency 750 hertz, and if the sound speed is 350 meter per second, then the passenger sitting in the other train, after the train have crossed, एक बार अगर ट्रेन्स ने क्रॉस कर लिया तो अब वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं. दैट मीन्स f will be equal to f naught v minus vo upon v plus vs, because frequency heard will be less than the original frequency. f naught हमें दिया हुआ है 750. This is going to be 330 minus 30 divided by 330 plus 30. That simply means we have 750 into 300 by 360.
कैंसिल करते हैं, 3 से भी कैंसिल करता हूँ तो ये जाता है 10 टाइम्स 12 टाइम्स, दैट मीन्स 7500/12। सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू ऑब्वियसली लेस देन 750 आने वाली है, एंड द वैल्यू विच इज लेस देन 750 इज 625 हर्ट्ज इन द ऑप्शन। ठीक गाइस, करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन बी। ओके, तो पीपल आई होप जो क्वेश्चंस हमने आज सॉल्व किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। These are the typical type of questions that you will come across in Doppler's effect. Okay, और प्रैक्टिस के लिए definitely you can solve questions from the reference material that you guys solve. Okay, and if you are new on the channel, then to cover up the previous chapters, अगर पहले के chapters miss किए हैं new students ने, तो you can cover up by two methods। दो methods बताता हूँ, एक free of cost है, दूसरा obviously paid courses हैं। तो आप इसी चैनल के अगर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो जीत लो 2022 जो सीरीज है दैट इज फॉर द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, और जीत लो 2021 जो है दैट इज फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। ओके गाइस, और अगर आप इन सीरीज के सेशंस को देखोगे तो वो पहले के लिए हुए सेशंस हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के हमारे पीसीएम के पहले जो लाइव सेशंस हुए हैं उनके रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप लाइव सेशंस अटेंड करो तो आप वेदांतु प्लेटफॉर्म पे भी आ सकते हो। ओके, उसके अलावा देयर इज वन सरप्राइज दैट वी आर रिवीलिंग टुमारो। ओके, टुमारो at 3 p.m. we are going to meet on 3 p.m. guys। we are going to have this session जहाँ पे we are going to invite a very special student of Vedantu। क्यों स्पेशल है वो क्रेडेंशियल्स आपको दिख रहे हैं। ही इज अ KVPY स्कॉलर, जेई मेन में 582 रैंक, गुजरात सीईटी में 99.96% मार्क्स, गुजरात बोर्ड्स में 99.93 मार्क्स और जेई एडवांस में 482 रैंक, एंड ही इज गेटिंग इनटू, ही इज ऑलरेडी गॉट इनटू आईआईटी। कौन से आईआईटी में पहुंचा है ये बच्चा, ऑब्वियसली उसको हम कल मिलने जा रहे हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड एंड do not miss this session। Arvind Kalia sir will be with me because he has been the mentor of this student। स्टूडेंट का नाम है प्रांशु, और आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो अपने सवालों के साथ। अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरह से इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी उसने अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू किया, और ना सिर्फ कंटिन्यू किया दोस्तों, इस एग्ज़ाम को ही नहीं इतने सारे ऑसम रिजल्ट्स को लेके आया है। सो डेफिनेटली आप इस ऐसे बच्चों से मिलना चाहोगे, ऐसे सीनियर्स से आप लोग मिलना चाहोगे टू सीक द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, राइट, एंड टू सी हाउ हैज़ बीन देयर जर्नी। वॉज इट सो ईजी, वॉज इट सो डिफिकल्ट? अगर आपके दिमाग में वो सारे क्वेश्चन आते हैं, do come in that session and you can ask those questions in the chat box and we'll take those questions and he will definitely be more than happy to answer those। okay guys, so I'll see you tomorrow for this session also। और अगर notifications के लिए automatic alerts चाहिए तो you guys can join our telegram channel जहाँ पे हम असाइनमेंट्स, उनके सोल्यूशन, स्टडी मटेरियल और डेली अपडेट शेयर करते हैं। ये वो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो डू यूज दैट। अगर इस सेशन में मजा आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो डू प्रेस दैट लाइक बटन। ओके, शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर चैनल यूजफुल लगता है, अगर आपकी पढ़ाई यहाँ से हो सकती है, अगर आपको यहाँ से इंफॉर्मेटिव सेशंस मिल सकते हैं, एंड वी कैन, इफ यू थिंक वी कैन हेल्प यू इन योर जेई जर्नी, please subscribe and press the bell icon। okay people, so on that note I'll take your leave। as I said, I'll see you tomorrow with that special session। take care, bye bye।